start or discuss about the adaptation for the insect pollinated flower. Adaptation for insect pollinated flower. Adaptation for adaptation. सर आप ये एडेप्टिव फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर पढ़ा दिए थे। Insect pollinated flower. बड़ा कंप्लीट यस सर। सर 4 पॉइंट आप इसका आप बता चुके थे एडेप्टिव फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का। pollinated flower, ठीक है, okay. This is very much easy, but very much important for your examination that water pollinated as well as the wind pollinated flower. Adaptation for the wind and water pollinated flower. Insect pollinated flower, that means nectar highly and colorful, as well as the flowers large and showy, colorful, etc. So these are the common characteristics or adaptive features of the insect pollinated flower. Now, another important, that is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. Write down about it. Pollen pistil interaction. Pollen pistil, P-I-S-T-I-L, pistil interaction. Pollen pistil interaction. The deposition of pollen grain. The deposition of pollen grain on the stigma until the entry of the pollen tubes into the ovule, collectively known as pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. The deposition of the pollen grain on the stigma until the entry of the pollen tube into the ovule are collectively known as pollen pistil interaction. Collectively known as pollen pistil interaction. Okay. ये short question आता है. What do you mean by pollen pistil interaction? सर इस बार ऑनलाइन टेस्ट होगा? ऑनलाइन टेस्ट कल, that means Sunday, the coming Sunday, biology test. Okay, 4th Sunday, and your portion, that's chapter number 1, very easy or simple chapter, you will prepare. याद रहेगा, all the students, those who are online, you must remember Yes, sir. that online test for biology, portion of the online test which will be conducted on Sunday, that means 25th April, that is reproduction in organism, chapter number 1, reproduction in organisms. You will remember it. Okay, फर्स्ट चैप्टर जो है उसको प्रिपेयर करो. संडे ऑनलाइन टेस्ट, और जो ओल्ड फॉर्मेट था, जो क्लास 11 में जो फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट से क्वेश्चन होगा. 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस. ओके, तो टोटल 10 मार्क्स जो होगा उस हिसाब से ऑनलाइन टेस्ट होगा. आपका शेड्यूल जो टाइमिंग है, कल बायोलॉजी का, कल नहीं संडे बायोलॉजी का है. आप पोर्शन याद रखो. क्या पोर्शन है? सर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म. चैप्टर 1. उसमें तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारा. एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेन्यूल्स क्या होता है, मियोसाइट क्या होता है, नेम द प्लांट व्हिच इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल,
स्टोलन क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, स्कोर फॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज बाइनरी फिशन क्या होता है, मल्टीपल फिशन क्या होता है. So these are definition in the first chapter. You have to remember which of the most chances of survivability, either oviparous or viviparous. इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज भी क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है. तो चैप्टर द बिगिनिंग ऑफ द सेशन इफ यू स्टडी thoroughly line by line of the NCERT, again I am saying that you will study the NCERT book line by line thoroughly. Those who are preparing for the NEET examination, okay, NEET examination में NCERT book बहुत crucial book है, valuable book है, valuable एक लाइन बहुत important है, ठीक है. अच्छा, पोर्शन याद रखोगे, एक चैप्टर नंबर 1. अच्छा, नेक्स्ट वन पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन. पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में ये डेफिनेशन है, द डिपोजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा until the entry of the pollen tube into the ovule are collectively known as pollen crystal interaction. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या क्या इसमें होता है पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में, क्या स्टेप्स है और डिपोजिशन के बाद क्या होता है वो आपको लिखना है. पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन डिपोजिशन के बाद क्या होता है वो आपको लिखना है. इट इज अ डायनामिक प्रोसेस. It is a dynamic process. It is a dynamic process involving pollen recognition, pollen recognition by pistil for compatible pollen. ये step number 1. It is a dynamic process involving pollen recognition by the pistil for the compatible pollen. पिस्टिल का एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है वो कौन पोलन को सिलेक्ट करेगा, कौन पोलन को रिजेक्ट करेगा. पोलन ग्रेन्स तो a large number of pollen grains are, that means fall on the surface of the stigma, but some of the pollen grains will be rejected and some of the pollen grains will be selected. That can be done by the pistil. Okay, तो कार्पेल उसको डिसाइड करता है किसमें कंपेटिबिलिटी है और किसमें नहीं है, वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इनकम्पेटिबल pollen are rejected by incompatible pollen are rejected by pistil and do not allow growth of pollen tube. The second step, sir. Third step, compatible pollen grow and enlarges. The pollen tube. Next step. The pollen tube grows through the stigma. हेलो सर. हाँ. सर साइड वाला नहीं दिख रहा है. कौन वाला? कैमरा तो सर साइड वाला जहाँ पोलन लिखा हुआ ना उसके बाद नहीं दिख रहा है. ठीक.
अभी दिख रहा है ना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। pollen tube, comfortable pollen grow and encourage the pollen tube. The pollen tube, last में लिखो, the pollen tube grow through the stigma. Grow through the stigma to reach the ovary. Reach the ovary. Last में then the pollen enters the ovule through micropyle and reach the synergies. Reach the synergies. These are the steps of the pollen pistil interaction. क्या होता है pollen pistil interaction में? ये these are the steps है. इसको आप लोग लिखो, स्टेप वाइज लिखते चलो. Sir, last में क्या रखे? And reaches the synergies. SYNERGIDS. synergies का पासी एक होता है ना, दो synergies और बीच में एक होता है. तो मेरा ये जो पोलन ग्रेन्स का मकसद क्या है, उसका साथ एक का साथ फ्यूज करना है. पोलन ट्यूब का थ्रू से पोलन ग्रेन जाता है, उस समय मेल गैमेट बन के जाता है. पोलन ग्रेन जब जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनाता है तो उस समय मेल गैमेट बन के ही जाता है, और मेल गैमेट जाके एक सेल का साथ फ्यूज करता है, क्यों ना उस सिनर्जी का साथ ही मिला हुआ रहता है. दो सिनर्जीज और बीच में एक सेल रहता है. सर हो गया. कंप्लीट. Yes, sir. इसके बाद आर्टिफिशियल Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन artificial hybridization. Next topic, artificial hybridization. इसका डेफिनेशन पहले लिखोगे. अंतरा रिमोट are removed from the bisexual flowers. Bisexual flowers using forceps. Forceps is known as emasculation.
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप क्या है? एमास्कुलेशन। डेफिनेशन आता है, व्हाट डू मीन बाय एमास्कुलेशन? एंथर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर यूजिंग फॉरफिक्स। मैनुअली उसको दैट मींस रिलीव करना है, एंथर्स को बाहर निकाल लेना है बाय मींस ऑफ द फॉरसेप्स, किसी एक कैंची से और किसी से मैनुअली उसको दैट मींस रिमूव कर देना। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एमास्कुलेशन। प्रोसेस का नाम क्या है बताओ तो? Emasculation. 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 Removing of anther from the bisexual flower artificially or manually. This is known as the emasculation. Can you say what are the importance of the emasculation? हेलो, हम एंथर को क्यों रिमूव करना चाहते हैं? सर क्योंकि हम क्रॉस ब्रीडिंग करा, हाँ, बाहर में तो ईयर में क्रॉस ब्रीडिंग कराने, पोलन ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड के लिए। हाँ, दैट मींस हम डिजायर पोलन ग्रेन्स को उसका ऊपर पिस्टिल का ऊपर डस्ट करेंगे और हम लोग नेचुरल वे में उसको रख देंगे तो नेचुरली हवा में तो बहुत पोलन घूम रहा है तो पोलन आके गिर जाएगा और उसी फ्लावर का जो एंथर है उस एंथर से पोलन, लेकिन वो हम नहीं चाहते। आर्टिफिशियली हम डिजायर्ड पोलन को स्टिग्मा पर उसको डस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उसको रिमूव कर दिए। उस फूल का, उस फ्लावर का पोलन को हम उस पिस्टिल पर गिराने नहीं जा रहे हैं, हम दूसरा पोलन को ये क्रॉस पॉलिनेशन। इट आल्सो प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन, नॉट फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, इसके बाद लिखो द emasculated flower, the emasculated flower, emasculated flower is covered with a paper bag, or polythene bag to prevent contamination of unwanted pollen. This is called bagging technique. देखिए इसमें दो डेफिनेशन आता है, व्हाट इज एमास्कुलेशन एंड व्हाट इज बैगिंग टेक्निक। जब एंथर को रिमूव कर दिया गया उसके बाद क्या होता है ना, पिस्टिल को पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया जाता है, क्यों ना हवा में जो पोलन ग्रेन्स है वो आके गिर ना जाए, अनवांटेड पोलन आके गिर ना जाए। क्यों ना हम आर्टिफिशियली उसको पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं डिजायर्ड पोलन से। अगर उसको कवर नहीं करेंगे पिस्टिल को तब अनवांटेड पोलन आके उस पर गिर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेस नहीं होगा। इस कारण से पिस्टिल को कवर किया जाता है पॉलीथीन बैग और पॉलीथीन पेपर से उसको कवर कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड पोलन ग्रेन्स, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज द बैगिंग टेक्निक। याद रहेगा ना? हेलो, यस Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्लियर करो। सुनो, अगर जहां भी Yes, sir. कंफ्यूज हो गया हमसे पूछोगे, ठीक है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एक एक टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट ना थर्ड स्टेप में क्या होता है देखो इसमें। Next, on attaining maturity,
on attaining maturity, mature pollen plant pollen from desert plant are dusted on the stigma. सर पोलन मैच्योर पोलन के बाद क्या लिखे हैं सर? Mature after on maturity, attaining maturity, mature pollen from desert plant. जब मैच्योर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं जो इमेच्योर पोलन ग्रेन्स को मैं डस्ट कर दूंगा. अगर मैच्योर होने का बाद क्या होता है, डेहिसेंस होता है. नेचुरल वे में डेहिसेंस होता है, ऑटोमेटिकली डेहिसेंस हो जाता है. पोलन ग्रेन्स जिस हिसाब से पोलन मैच्योर होता है, इसमें स्प्लिट होता है बीच में. स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, वो डस्ट नेचुरल वे में वो स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, किसी में पोरस डेहिसेंस होता है, तो वो पोलन ग्रेन्स को बिफोर मैच्योरिटी कलेक्ट कर लेना है. कलेक्ट करने के बाद जिसको पॉलीथीन बैग से स्टिग्मा को रैपर किया गया, उस स्टिग्मा पर उसको डस्ट कर देना है. तो मैं डिजायर्ड जो पोलन ग्रेन्स, उसी से ये पॉलिनेशन किया जा रहा है. हम जिस स्पीसीज से या जिस प्लांट से चाहते हैं, डेफिनेटली सेम स्पीसीज तो होना ही है, बट डिफरेंट प्लांट्स में. दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, स्टिग्मा. इसके बाद ऑफ बैग फ्लावर एंड rebag for fruit development. Okay, so these are the third step of artificial hybridization. On attaining maturity, matured pollen from the desert plant are dusted on the stigma of the bed and rebag for the fruit development. पहले जिस प्लांट से हम चाहते हैं पोलन ग्रेन्स का, उस प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन्स, फ्लावर का पोलन ग्रेन्स मैच्योरिटी होगा, उसी पोलन को कलेक्ट किया जाता है और जो बैक स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा का ऊपर में डस्ट किया जाता है. उसके बाद फिर से रिबैक्ट कर देना है. रिबैक्ट इन दैट सेंस फिर से दूसरा पोलन ग्रेन्स आके हो सकता है उस पर गिरे, इस कारण से उसको रिबैक्ट कर देना है for further development of the fruit. So these are the steps involved in the process of the artificial hybridization in plant. Okay, this technique also called the plant breeding, और plant breeding technique में step follow होता है. ठीक है, तो ये bagging technique, emasculation, what are the step involved in artificial hybridization, ये 3 step mainly. इसी में 2 definition आपका important है. One is emasculation and दूसरा है bagging technique. Okay. Yes. Next. ये कंप्लीट हो गया ना? हेलो. यस सर. हेलो. यस सर. Yes, ओके. sir. Yes, sir, हो गया. अच्छा, पीयूष गोयल, आप बताओ emasculation क्या होता है? आप बताओ. Sir, emasculation is a process when anther of the flower is removed by sir, kanji से क्या बोलते हैं? Sir, anther are removed from the bisexual flowering by using the forceps is called emasculation. अच्छा, हाँ ठीक है. किसने कहा? क्या नाम है? Sir, tulika. तुलिका. ठीक है, पहला आपको नाम आया था स्क्रीन पर, आप अटेंड किए थे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. जो उसको रिमूव कर देना है, रिमूव करने के बाद जो पिस्टिल को रैपिंग कर देना है. रिमूविंग का प्रोसेस का ही नाम है एमास्कुलेशन, और रैपिंग करने के बाद उसका टेक्निक का नाम हो जाता है बैगिंग टेक्निक.
बैगिंग टेक्निक इस कारण से किया जाता है, अनवांटेड पोलन ग्रेन आके उसके ऊपर ना गिरे, इस कारण से बैगिंग किया जाता है। जब प्लांट ब्रीडर्स और कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बॉटनिस्ट और मैं अगर चाहता हूं जो मिसी प्लांट का पोलन हमको इसी पर स्टील पर गिराना है, गिराना और डस्ट करना है, तभी हो सकता है, संभव हो सकता है। इसी कारण से क्या है ना, इसमें इसको डस्ट कर दिया जाता है और हम जो डिजर्ट प्लांट का जो फर्दर फूड डेवलपमेंट होता है उसमें प्रोसेस डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप्स है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कोई कंफ्यूजन है? ये तो क्लास 10 में भी डिस्कस किए, पिछले चैप्टर में भी मैंने डिस्कस किया है। कोई कंफ्यूजन किसी को है? नो सर। नो सर। एक बार आप डबल फर्टिलाइजेशन क्या है बता दो। बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में, एंजियोस्पर्मस प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन, हाँ बोलिए। Female gamete unite with the two male gametes. One of the male gamete fertilize egg, resulting in the formation of the zygote, and other unites with the two polar nuclei for the formation of the endosperm. एक्चुअली जब पोलन ट्यूब बनता है, जर्मिनेशन, मान लीजिए पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा ऊपर, उसमें पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब का थ्रू से दो मेल गैमेट रिलीज होता है और वो जाके किसका थ्रू से ओव्यूल में जाके मिलता है, माइक्रोपाइल में जाके ज्वाइन हो जाता है। माइक्रोपाइल किसका साथ अटैच है, ओव्यूल का साथ अटैच है। पोलन ट्यूब का जो माइक्रोपाइल है, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल वो पोलन ट्यूब का साथ अटैच है। एक मेल गैमेट जाके जाइगोट का साथ फ्यूज होता है, ये जाइगोट एक सेल का साथ फ्यूज होता है, व्हिच फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। Another male gamete fuses with the two polar nuclei. Two polar nuclei का साथ मिलते ही वो क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। क्यों ना, टू पोलर न्यूक्लियाई में दो एन है, एन मींस हैप्लॉइड है। देखिए जाइगोट, मेल गैमेट, फर्स्ट जो टू मेल गैमेट, the first male gamete fuses with एक सेल। तो मेल गैमेट इसमें लिख देते हैं, मेल गैमेट प्लस एक सेल, एक सेल, ए हो गया एन, ए हो गया एन, इक्वल टू 2n हो जाएगा। 2n मींस ए बी हैप्लॉइड, डिप्लॉयड हो जाएगा, DIPLOID, डिप्लॉयड। ये हो जाएगा आपका जाइगोट। जाइगोट, a zygote further developed into embryo, zygote further developed into embryo। याद रखोगे, जाइगोट फर्दर डेवलप हो जाएगा, डेवलप होके एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाएगा। अनदर मेल गैमेट, ये हो गया क्लियर है ना। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, मेल गैमेट प्लस एक सेल, n प्लस n हो जाएगा, n इसका डिप्लॉयड हो जाएगा, डिप्लॉयड मींस ये जाइगोट फॉर्मेशन होगा और जाइगोट फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्रायो, एम्ब्रायो मींस धीरे-धीरे एक नया पेड़ बन जाएगा। ठीक है, और एक जो मेल गैमेट, टू मेल गैमेट में जो सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद second male gamete fuses with two polar nuclei, two polar nuclei। that means polar nuclei में क्या है, 2n है, 2n उसमें n प्लस n कंडीशन में है, आगे n उसमें होता है मेल गैमेट। ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, न्यूक्लियाई, और ये हो गया आपका मेल गैमेट। ये तीनों मिलके n प्लस इक्वल टू 3n, इसको कहा जाएगा एंडोस्पर्म।
एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का क्या, देखिए, तो फर्स्ट मेल गैमेट और ये एक मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल व्हिच फॉर्म द जाइगोट, अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई में एक सेल है बट उसमें दो न्यूक्लियस है, लेकिन उसमें फ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, n+n+n पोलर न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट इक्वल टू 3n हो जाएगा, 3n इट फॉर्म द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है बताओ, प्रियांशु कहाँ है यार, provide nutrition. हाँ बताओ, Yes, sir. एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, So ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रायो। it provide nutrition to the or nutrients to the developing embryo. So this is the fact of the double fertilization. इसमें बार-बार आप लोग को ये चीज है, बट जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है उसको समझ में आएगा, और जो नहीं इंटरेस्ट ले रहा है उसको 100 बार भी समझाइएगा वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इन जनरली हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन में एक ही मेल गैमेट का जरूरत होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, बट इन एंजियोस्पर्मस प्लांट में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस में पाया जाता है, उसमें टू मेल गैमेट जरूरत होता है। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल व्हिच फॉर्म द जाइगोट और डिप्लॉयड जाइगोट, अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई व्हिच फॉर्म द ट्रिपल एंडोस्पर्म, and this endosperm supply the nutrients to the developing embryo. So this is all about the double fertilization. इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, what do you mean by double fertilization? What are the process of double fertilization in angiospermous plant? ठीक है, अच्छा क्या क्लियर, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं होना चाहिए, 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, 12 में भी जस्ट उसी को रिपीट किया जा रहा है, और कितना बार किया जाएगा बताओ, ये तो 10th में एक बार पढ़ाई हो चुका है, 11 में भी फ्लावरिंग प्लांट्स का टाइम मैंने डिस्कस किया है, और 12 में थर्ड टाइम डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, क्या क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट क्या क्या होता है, इवेंट्स, इसमें नंबर 1 में क्या इवेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म फ्रॉम primary endosperm nucleus जिसको हम लोग एब्रिविएशन में PEN बोलते हैं, PEMMC पूरा नाम क्या है, Primary The endosperm. primary endosperm nucleus. PMC मतलब क्या होता है, Primary mother cells. अच्छा PEN मतलब क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब एब्रिविएशन याद रखोगे, एंड आप लोग आप मैच्योर्ड हो गया, आपको बार बार इतना बड़ा लिखने का जो एब्रिविएशन लिखा रहेगा, ठीक है, आपको समझ लेना है क्या बोलना चाह रहे हैं, PEN। नेक्स्ट इसमें नंबर 2 में है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल, डेवलपमेंट of seeds
from ovule. Number 4, development of fruit. Development of fruit from ovary. These are the 4 incidents takes place after fertilization. एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है, सीड्स डेवलपमेंट होता है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है। अच्छा, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं व्हाट इज फ्रूट, व्हाट डू मीन बाय फ्रूट? So matured ovary turns into fruit. Matured ovary, matured that means fertilized ovary is known as fruit. कभी कभी अनफर्टिलाइज्ड हो जाता है तो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट pollination and fertilization. Whenever fruit development, at that time this is known as the पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट. जैसे पपाया में होता है, कभी कभी अंदर में सीड्स नहीं दिखाई देता है, बनानास में होता है, ग्रेप्स में दिखाई देता है. These are known as the that is parthenocarpic development of the fruit. ठीक है? Without pollination and fertilization, if fruit is developed from the ovary, then it is called the parthenocarpic development of the fruit. उसमें हार्मोन का डेवलपमेंट काम होता है. एक हार्मोन होता है प्लांट में, आप लोग जानते हैं ऑक्सिन हार्मोन, उस ऑक्सिन हार्मोन से फ्रूट डेवलपमेंट होता है. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में पहला जो सिचुएशन है, एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम PEN. ठीक है? नेक्स्ट है एंडोस्पर्म PEN undergoes successive